पूछने की नहीं। सो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज फिर से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। इसके पहले जो लेक्चर मैंने लिया था वो एज एन सैम्पल लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का था, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस अबाउट माय दिस चैनल सीक्रेट ऑफ द साइंस, एंड इन दिस channel I am going to introduce the entire secret of science, and the science of art also, science of commerce also, and science of science also. Here I am going to percolate you true knowledge of entire science, and we take the knowledge of true knowledge of arts, true knowledge of science, and the true knowledge of commerce. So, in case of art, there are various arts, including drawing, languages, history, then some of the people also say it politics or political science, music, in that our Indian classical. So entire arts, then martial arts, because I am myself is 3-degree black belt of Shikari martial arts. So entire arts I am going to teach you, or not teach you, I am just percolate you the knowledge of these arts in the lectures of 20 minutes, not more than that. 20 minutes I will take. Other than that, the true science is in that physics, chemistry, biology, medical science, then genetics, electronics, electricals, mechanical, mathematics, then we say space science, spiritual science. Here I want to add one thing in arts, the mythology. Mythology and spiritual science both are different. Scriptures and mythology and religion. Religion is also comes in arts, but spiritual science is the scientific part. Then commerce, you know that accounting, taxation, law is also come in this art division. So law also I am going to discuss with you. Accounting, taxation, then is economy of
India as well as other nations. So entire this economy is going to India and other nations. So entire knowledge is available in these three type of science. These three are nothing but the science. So what is the difference between what I am going to explain and what the others are explaining? So I just want to give you a slight introduction. मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि अन्य लोगों के एक्सप्लेनेशन में और मेरे एक्सप्लेनेशन में क्या अंतर है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि मैंने करीबन अपने 5 साल का समय लगभग 500 सालों के जितना अध्ययन करने में लगा, जिसमें मैंने शुरुआत जो किया था वो रिलीजियस बुक से किया था। रिलीजियस बुक्स, इसमें जब मैं स्टडी किया, आई फाउंड दैट देयर आर only 11 religions in the world. There are 11 religions in the world. They are Hinduism, the oldest. Hinduism is the oldest religion. I am not saying dharma. Dharma and religion both are different. Dharma and religion both are different. Religion are the path that made by some people or person or human being. That path is known as religion. So religion made by human being. And I have also found that these religions, those made by human beings, there are 11 religions. Number 1 is Hinduism. Number 2 is Christianism. Number 3rd is Islam. Or we say if we go through the time, then number 1 is Hinduism, number 2 is Judaism, number 3rd is Parsism, number 4th is Buddhism, number 5th is Jainism, number 6th is Islam, number 7th is Shintoism, number 8 is Laoski, number 9th is Yen, number 10th is Sikhism, number 11th is Parsism. There are these 11 religions available in entire world, and these entire religions are made by some human being. We also study these things in the knowledge of art. So I am going to explain you what is difference between what I am going to explain and what others are going to explain. So see here, a single person, myself, is going to describe you all these science. And second thing, whatever I studied in the 5 years of period, I read Veda,
4 Vedas are there. 4 Vedas are there. Then Puran, 18 Purans. Upanishad, 108 Upanishads are there. Then and various other sub-religions book of Hinduism. There are ISKCON, Swaminarayan Sampradaya, and many other Sampradaya. Religion means Sampradaya. In Hindi we say Sampradaya. That made by some person, Sampradaya. उसके बाद जुडिज्म यानी यहूदी, इनका ग्रंथ है तोरा। तो इसका मैंने अध्ययन किया, पारसीज्म का अध्ययन किया, बौद्धिज्म का अध्ययन किया, इसके त्रिपिटक पूरे मैंने अध्ययन किए, जैनिज्म के निकाय पढ़े, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें श्वेतांबर, दिगंबर इत्यादि के। इस्लाम में मैंने कुरान पढ़ी और 6 हदीस हैं, 6 हदीस पढ़ी। शिल्पिज्म, बौद्धिज्म का ये किताब है, उसका मैंने अध्ययन किया। लाओस्की संप्रदाय का अध्ययन किया, यन संप्रदाय का अध्ययन किया। सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब मैंने पढ़ा। पारसीज्म के भी ग्रंथों का अध्ययन किया। इस तरीके से एक सम्यक अध्ययन जो था रिलीजियस स्टडीज का, वो मैंने किया। और अन्य जितने भी आप देख रहे हैं, इनका भी सपोज बहुत डीप में मैंने अध्ययन किया। और अध्ययन करके व्हाटएवर एक्सट्रैक्ट आई गॉट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑल द एक्सट्रैक्ट व्हेन यू कंज्यूम there will be no chance of any type of illusion, भ्रम का कोई भी चांस आपके पास नहीं रहेगा। इसी साइंस में एक बहुत महत्वपूर्ण साइंस आता है, इसको कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। और मनुष्य के शरीर में, मनुष्य इस शब्द ही कहा गया है, तो मन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक यंत्र है। इस शरीर के अंदर मन जो है बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। इसके बारे में भी मैं आपको बहुत ही कम समय में, 20 मिनट के समय में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए थोड़ा बेसिक जो है मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या समझाने वाला हूँ और क्यों समझाने वाला हूँ, क्यों बताने वाला हूँ। समझाने तो नहीं वाला हूँ, समझदार आप सब लोग हैं ही ऑलरेडी। तो इसका क्या उद्देश्य है और इसका क्या लाभ है, इस ट्रू साइंस को, ट्रू नॉलेज को लेने का लाभ क्या है। तो मित्रों, साथियों, बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि आज के समय में 99.99% जगहों से आपको गलत ज्ञान मिलता है, रॉन्ग नॉलेज मिलता है, गलत ज्ञान मिलता है। और इस गलत ज्ञान के कारण आपको जीवन भर भ्रम में जीना पड़ता है। आपकी जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो किसी भी देश में, किसी भी जगह की, किसी भी स्थान की हो, वो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की संरचना या डिजाइन इस तरीके से की गई है ताकि आपको भ्रम में रखा जा सके। और यह भ्रम में क्यों रखा जाता है? ताकि आपको गुलाम बनाया जा सके। टू मेक पीपल स्लेव, wrong knowledge teach or taught by the institutions, government, religious organization, क्योंकि यदि ज्ञान ही नहीं रहेगा, यदि ज्ञान ही नहीं रहेगा तो ज्ञान के बिना
ज्ञान के अभाव में व्यक्ति का डिसीजन जो है, डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। वो सोच ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसको आखिर क्या करना है। और मेरा जो सिद्धांत इसको समझाने का है, मेरा प्रश्न ही आपसे यह है, आज कहाँ भाग रहे हो? क्या है पाना? पहले यह तो समझ लो कहाँ है जाना। यानी हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या पाना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन प्रत्येक आदमी प्रतिक्षण अनवरत दौड़ा चला जा रहा है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इज रनिंग टू गेट समथिंग। वह जो जानना आप चाहते हो, तो सबसे पहले उस चीज को जानना होगा। फिर जो आपने जाना उसका एनालिसिस आप करेंगे और उसको आप मान पाएंगे। और उसके बाद चौथी चीज आती है प्राप्त करना। इसी को पूर्णत्व कहते हैं। और पूर्णत्व ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है। तो मित्रों, मैं ज्ञान के पूर्णत्व तक आपको ले जाने की इस परिश्रम में लगा हुआ हूँ। आपको गुलाम इसलिए बनाया गया ताकि आपका उपयोग किया जा सके, आपको परिश्रमिक एक अपने कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। चाहे आप धर्म के नाम पे कहिए, चाहे जाति के नाम पे कहिए, चाहे आप शिक्षा के नाम पे कहिए, हर तरीके से एक विशिष्ट षड्यंत्र के द्वारा हम सभी को बांटा गया। और इसी को फूट डालो कहते हैं, बांटा गया। मनुष्य को, मानवता को बांटा गया और मानवता को बांट करके उसका उपयोग किया जा रहा है। चाहे वो आप किसी भी संस्था के अंदर विभाजन देख लीजिए, लेवल ऑफ पीपल देख लीजिए, तो ये सब जो पूरी संरचना, इसी को सिस्टम कहते हैं या मैनेजमेंट कहते हैं। तो इन एट द लास्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट सिस्टम एंड मैनेजमेंट। बहुत ही दिमागदार लोग इसमें लगे हुए हैं और कई हजार साल से लोग लगे हुए हैं ताकि मनुष्य को गुलाम बनाया जा सके और गुलाम बना करके वास्तव में उसे शैतान यानी एविल बनाने के, शैतान बनाने के या मानवता को समाप्त करने के कार्य में लगाया जा रहा है। लोग हिंसा, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, आदि पाप कर्म करते रहे या गलत कर्म करते रहे, इसके लिए उनका ब्रेन वॉश कंटिन्यूअस किया जा रहा है कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा, जो कि शिक्षा व्यवस्था को, इस विज्ञान को, वास्तविक विज्ञान को, सनातन विज्ञान को यानी प्रकृति के विज्ञान को आप लोगों को बताने से, समझाने से प्रकृति के विज्ञान को रोकते हैं। गलत इतिहास बना करके, गलत विज्ञान बना करके, गलत इकोनॉमी बना करके, गलत अर्थव्यवस्था बना करके, गलत राजनीति विज्ञान बना करके, गलत आज जितना भी आप ये सब पढ़ रहे हैं, गलत ज्योग्राफी बना करके, गलत हिस्ट्री बना करके, गलत स्पेस साइंस बना करके। मैंने नासा से ये प्रश्न पूछा, एक मेल मैंने भेजा था याहू से, याहू मेल से, और नासा से मैंने प्रश्न पूछा कि भाई आप लोग यहाँ से रॉकेट लॉन्च करके
चंद्रमा पर चले गए थे, बात सही है, बहुत समय पहले 1940 के बाद की बात है। तो आप चले गए थे आई थिंक 1990, मेरे को अभी डेट एग्जैक्टली याद नहीं। तो आप जब भी गए थे, फर्स्ट आपका लॉन्चिंग था और आप वहां पर पहुंचे, वहां जाने के बाद आपने निरीक्षण किया, ये सब मैं मानता हूँ, लेकिन आप रिटर्न वहां से कैसे आए, ये प्रश्न मैंने मेल लिख करके नासा से पूछा था। और नासा इसके ऊपर 11 दिनों तक चिंतित रहा, अपना सोचता रहा, ये करता रहा, और उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया, इंक्लूडिंग याहू मेल के सर्वर से वो मेरा मेल भी उड़ा दिया गया कि आप रिटर्न कैसे हैं। क्योंकि जब यहाँ से आप लॉन्चिंग करते हैं चंद्रमा पे जाने के लिए, तो आपको बहुत सारा साइंस लगता है, इंक्लूडिंग आपके पास लॉन्च पैड होना चाहिए, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में मल्टी स्टेज रॉकेट होना चाहिए। उस मल्टी स्टेज रॉकेट से एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में आपका जाता है, स्पिनिंग करता है, और स्पिनिंग करके वहां पे जाकर के आपका जो रॉकेट लॉन्चर से आप लॉन्च किया है स्पेस शटल, वो वहां उतरता है। बाद में रॉकेट तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, रॉकेट उसके साथ में नहीं जाता। तो इतना सारा फ्यूल जब यहाँ से जाने के लिए लगा, तो चंद्रमा से आने के लिए कम से कम हाफ या 1/4 फ्यूल लगना चाहिए, और वो सब साइंस वहां से लॉन्च पैड होना चाहिए, उस लॉन्च पैड से आपके पास पृथ्वी तक आना चाहिए। वो सारा साइंस जो था, रिटर्निंग का साइंस क्या था, कैसे था, कृपया करके मुझको जानकारी देने का कष्ट करें। नासा ने आज तक मुझे उसका जानकारी नहीं दिया, मतलब आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बाद में मेरे इसी पोस्ट का फायदा उठा करके कुछ लोगों ने ये कह दिया कि भाई पृथ्वी के चारों ओर कांच के जैसा कुछ कवरिंग है, उसके बाद कुछ जा ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। जाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं जा सकता। वो जो कुछ भी थ्योरी हो, नील आर्मस्ट्रांग ये सब गए थे चंद्रमा पे, जाकर के वापस नहीं आया जा सकता, जाया जा सकता है। तो ऐसी मूर्खता कृपया ना करें। किसी भी साइंस को पूर्ण रूप में आप समझें, तो पूरी तरीके से मैंने इस विज्ञान को जो है, हर एक प्रकार के विज्ञान को भली भांति समझा। मैं 20-20 मिनट का एक लेक्चर जो है लूंगा हर एक साइंस का, और बेसिक जो है मैं बेसिक एक्सप्लेन करूंगा। जिन लोगों को इंटरेस्ट है बेसिक के बाद उसका डिटेल जानने का, तो 20-20 मिनट का मैं बेसिक्स जो है हर एक साइंस का लेक्चर बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा। अगर आपको बेसिक के बाद डिटेल में जाना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और कमेंट करेंगे जैसे ही आप लोगों की जिज्ञासा, क्योंकि डिमांड के ऊपर से डिपेंड करेगा कि मुझको कितनी एनर्जी अपनी लगानी है लोगों के लिए। अगर यू पीपल्स आर इंटरेस्टेड टू नो द एग्जैक्ट साइंस, द रियल साइंस, एंड द वे बाय विच यू प्रिवेंट योरसेल्फ टू बिकमिंग स्लेव, एक गुलाम बनने से आप यदि रुकना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उसके विज्ञान को मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। आप कृपया करके हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।